اہم خبر یہ دیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے خدیجہ صدیقی کیس پر نوٹس لے لیا ہے۔ خدیجہ صدیقی کیس میں سیشن جج لاہور سے انتظامی طور پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ کو 30 دن میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ڈائریکٹر جنرل ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جانب سے ڈسٹرکٹ سیشن جج لاہور کو خط بھجوا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ نے خدیجہ صدیقی کیس پر نوٹس لے لیا ہے۔ خدیجہ صدیقی کیس میں سیشن جج لاہور سے انتظامی طور پر رپورٹ طلب کر لی گئی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کو 30 دن میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے ریاض شاکر سے۔ ریاض، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس عدالتی کارروائی کی؟ جی، یہ آج شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں جو خدیجہ کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، اس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ نے انتظامی سطح پر نوٹس دیا اور اس معاملے کو ڈسٹرکٹ سیشن جج لاہور کو بھجوایا تاکہ وہ خدیجہ کیس کی سماعت کرنے والے جوڈیشل میجسٹریٹ کو یہ ہدایت جاری کریں کہ وہ اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں اور اس کی ہفتہ وار رپورٹ عدالت کے روبرو پیش کی جائے۔ خدیجہ نے شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ الزام عائد کیا تھا کہ ملک میں جو انصاف کا جو ادارے ہیں وہ اسے صحیح معنوں میں انصاف نہیں دے رہے اور وہ 1 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے تاکہ اسے انصاف ملے، لیکن اسے انصاف نہیں مل رہا اور ملزم جو ہے جس نے اسے خنجر مارے تھے وہ ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ریاض شاکر۔ یاد رہے متاثرہ خدیجہ صدیقی نے جیو نیوز کے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کی تھی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اب خدیجہ صدیقی کیس پر نوٹس لیا ہے۔ طیبہ تشدد کیس سے متعلق اہم خبر آپ کو دیں۔ صلح نامہ مسترد کرنے کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ملزم راجہ خرم علی خان نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، جس میں ان کے وکیل راجہ رضوان عباسی ایڈوکیٹ کا موقف تھا کہ صلح نامہ مسترد کرنے کا فیصلہ درست نہیں۔ قتل کیس میں بھی مدعی کے ساتھ صلح نامے کو قبول کیا جاتا ہے۔ میاں عبدالرؤف ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا موقف تھا کہ طیبہ کے والدین نے اپنی بچی کو ملازمت کے لیے نہیں، کفالت کے لیے راجہ خرم کے پاس چھوڑا تھا۔ راضی نامہ اعتراف جرم کے بعد ہوتا ہے۔ اور اب بات کریں گے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، جبکہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات بدل کر دورانیہ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی وہاں ٹیکنیکل فالٹ، فیڈر ٹرپنگ اور مینٹیننس ورک کے نام پر بجلی غائب رہنے لگی ہے۔ بڑھتی گرمی کے ساتھ بجلی نے بھی لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ صنعتی علاقوں میں آئندہ 15 دن رات 11 سے صبح 7 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ بجلی کی کم سے کم لوڈ شیڈنگ کے حکومتی دعوے اپنی جگہ، مگر ثابت ہو گیا کہ کراچی میں ہوگا وہی جو کے الیکٹرک چاہے گی۔ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے درجنوں حربے ہیں۔ کہیں مرمتی کام کے بہانے ٹھیک ٹھاک کھمبوں اور پی ایم ٹیز پر عملے کو چڑھا کر گھنٹوں بجلی بند کیے رکھتی ہے، تو کہیں ٹیکنیکل فالٹ کی آڑ لی جاتی ہے۔ کبھی ٹرانسمیشن لائن میں گڑبڑ تو کہیں فیڈر ٹرپ ہونے کی ترپ چال۔ یوں گزشتہ 20 دنوں کے دوران شہر میں بجلی کا چھٹا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس پر کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح تیز ہواؤں اور آندھی کے باعث این ٹی ڈی سی کے 500 کلو واٹ سرکٹ پول کو نقصان پہنچا، جس سے نیشنل گریڈ سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ گلشن اقبال ایئرپورٹ کے اطراف کے علاقے، ایف بی ایریا، نارتھ کراچی، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کا تعطل آئندہ 2-3 روز تک جاری رہے گا۔ کراچی میں بجلی کی طلب 3000 میگا واٹ اور شارٹ فال 500 میگا واٹ ہے۔ تاہم کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث صنعتی اور تجارتی علاقے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ تاجر رہنما عتیق میر نے خبردار کیا کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا تو کے الیکٹرک کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ کراچی میں بجلی کی آنکھ مچولی اس لیے کہ بجلی کا شارٹ فال 550 میگا واٹ ہو گیا۔ شہر میں بجلی کی طلب 2900 میگا واٹ اور کے الیکٹرک 2300 میگا واٹ فراہم کر پا رہی ہے۔ کے الیکٹرک کی اپنی پیداوار 1280 میگا واٹ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر میں بجلی کی طلب 2900 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک شہر میں 2350 میگا واٹ بجلی
फराहम कर रही है। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्ट फॉल 600 मेगावाट है। ज़राए ने मजीद बताया कि के इलेक्ट्रिक 1280 मेगावाट बिजली अपने पावर प्लांट से पैदा कर रही है। के इलेक्ट्रिक बिन कासिम के 220 मेगावाट के 6 पावर प्लांट्स में से 2 प्लांट्स पैदावार दे रहे हैं। 2 पावर प्लांट्स कोयले पर होने की वजह से फाल नहीं हैं। बिन कासिम के 2 पावर प्लांट्स मजमूई तौर पर 340 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि इलेक्ट्रिक IPP से 250 मेगावाट बिजली हासिल कर रही है। नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली हासिल करती है। कैनप से 80 मेगावाट और दीगर पावर प्लांट से 14 मेगावाट, जबकि दीगर आउटसोर्सेज से 994 मेगावाट बिजली खरीद रही है। और अपडेट ये है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक से कराची में कम से कम लोड शेडिंग करने की अपील कर दी है। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने वजीर आला को यकीन दहानी कराई है कि रमजान के महीने में शहर में लोड शेडिंग कम की जाएगी। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वाले 3 नौजवानों की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू ज़राए बताते हैं कि एक नौजवान की तलाश इस वक्त भी जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमर रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमर, कहिएगा, जिनका प्यारा इस दुनिया से चला गया उसकी शनाख्त तो हो ही जाएगी, ये कहिएगा इंतजामिया क्या कर रही है, क्योंकि हमेशा गर्मी जब भी आती है लोग नहाने जाते हैं और इस तरह के हादसा हर साल पेश आते हैं, तो कोई प्लान बनाया गया ताकि इनको रोका जा सके, ऐसे हादसा को, वहाँ लोग मौजूद हो? जी ज़ोहेब, अब तक जो है वो इस तरह का कोई प्लान नहीं बनाया गया है और ये 3 लोग हैं जिनकी लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं। इनकी शनाख्त एजाज, हमजा और अली के नाम से की गई है और ये तीनों जो है वो एक स्कूल के, औरंगी टाउन में एक स्कूल के तालिबे इल्म है। ये स्कूल की जानिब से जो है वो पिकनिक पर आए थे और यहाँ पर जो है वो ट्रिप आया था। पूरा क्लास के कई नौजवान जो है वो यहाँ पर आए थे इस स्कूल के और उसके बाद ये हादसा पेश आया कि नहाते हुए डूब गए। इसमें से 3 लोगों की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक की तलाश जो है वो वहाँ पर जारी है। इंतजामिया की जानिब से कोई काम वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। ईदी वेलफेयर के रजाकार वहाँ पर मौजूद हैं। जो अब तक की कार्रवाइयाँ हुई हैं, यानी कि लाशों को निकालना, वो काम भी जो है वो ईदी के रजाकारों की जानिब से किया गया है, जबकि जो अभी रेस्क्यू वर्क जारी है वो भी इन्हीं की तरफ से जारी है, जबकि कोई इंतजामिया जो है वो अब तक वहां पर नहीं पहुंची है ताकि इस ऑपरेशन में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले सके। अच्छा अहमर, ये भी बता दीजिए इस मकाम पर यहाँ पर शहरियों के नहाने पर पाबंदी है? जी देखिए, वैसे ही जो है वो साहिल पर दफा 144 जो है वो नाफिज है। इस हवाले से वैसे पाबंदी आयद होती है, गहरे समंदर में जाने की वैसे भी पाबंदी होती है, लेकिन ये नौजवान कुछ मनचले नौजवान होते हैं जो समंदर में नहाते नहाते आगे चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते और उसके बाद डूब जाते हैं। उसके बाद फिर इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमर रहमान खान। कराची में रमज़ान मुबारक से कबल साहिल समंदर पर पिकनिक मनाने के लिए जाने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। गहरे समंदर में नहाने के बायस हादसात हो रहे हैं। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए, बता रहे अहमर रहमान खान। गर्मी की शिद्दत और बिजली की आंख मचोली, फिर चंद दिनों में रमजान मुबारक की आमद। शहरियों की बड़ी तादाद रुख कर रही है साहिल समंदर का। समंदर पहुंचकर बहुत से मन चले काबू से बाहर होकर गहरे पानी में नहाने की कोशिश करते हैं, जिसके बायस डूबने के वाकयात में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान 5 अफराद डूबकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। 21 मई को सैंडस्पेट में पिकनिक मनाते हुए 2 नौजवान रेहान सलीम और हम्माद डूबकर जाँ बहक हुए। बहादराबाद के रिहायशी रेहान की लाश तो निकाल ली गई, लेकिन हम्माद की लाश 22 मई को मिली। हॉक्स बे चावला बीच पर नहाते हुए 20 साला पिंटो भी जान की बाजी हार गया। 22 मई को गिडानी के साहिल पर डूबकर 20 साला तजम्मुल हुसैन जाँ बहक हुआ। इसके अलावा हब डैम से उसामा नामी नौजवान की लाश मिली। मुनाड़ा में डूबने वाले अजीम की लाश ताहाल न मिल सकी। अहमर रहमान खान, जियो न्यूज़, कराची। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक आपको बताएं, जो कि बिल्कुल अब शुरू होने वाली है और जून से शुरू हो जाएगी अब सा। और उमर अकमल फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये मामला उठा कि उमर अकमल की जगह हारिस सुहेल को इंग्लैंड भिजवाने का फैसला किया। ज़राए PCB के मुताबिक हारिस सुहेल ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। मजीद जानेंगे अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अयाज, क्या बताते हैं PCB के ज़राए? जी अफसर, PCB ज़राए ने कंफर्म किया है अभी हमें कि उमर अकमल जो कि फिटनेस टेस्ट पास न करने की वजह से ICC चैंपियन ट्रॉफी 2017 की स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं।
जिन को बहुत जल्द वतन वापस भेजा जा रहा है, उनकी जगह हारिस सोहेल को टीम में शामिल किया गया है और इसका ऐलान कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए कर दिया जाएगा। 3 खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी बुलवाया गया था, उमर अमीन, आसिफ जाकिर और हारिस सोहेल। जो तीनों खिलाड़ियों ने अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो पास कर लिया, लेकिन हारिस सोहेल पर फोकस दी गई क्योंकि हारिस सोहेल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उससे काफी ज्यादा मुतमईन नजर आए हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी है, और तमाम सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर जो है हारिस सोहेल के नाम के ऊपर इत्तेफाक किया है। उनका ये कहना है कि हारिस सोहेल जो है वो अच्छा, हारिस सोहेल को ज्यादा खेलते हुए देखा नहीं है जिन लोगों ने, क्या ये ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं? जी, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है हारिस सोहेल, बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का। उनको थोड़ा सा फिटनेस का इशू था जिसकी वजह से वो काफी अरसा रिहैब में रहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और जो अभी पाकिस्तान कप हुआ है रावलपिंडी में उसमें भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया हारिस सोहेल ने, और बड़े अच्छे एनर्जेटिक फील्डर भी हैं और बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं, और पाकिस्तान के लिए उनकी जो इंग्लैंड जैसी सिचुएशन है उसमें या साउथ अफ्रीका में काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं। तो सिलेक्शन कमेटी ने हारिस सोहेल के नाम पर इत्तेफाक करते हुए इंग्लैंड कंडीशन के मुताबिक उनको प्रेफर किया है। सिलेक्शन कमेटी ने उमर अकमल की जगह हारिस सोहेल को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया है। अपडेट कर रहे थे आज़बर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे पैनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT ने 4 इदारों से टीमें मांग ली हैं। SECP, NAB, FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी टीमें मुश्तरका तहकीकाती टीम की मदद के लिए फराहम कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि NAB, FIA, SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टीमें तश्कील देकर उनकी खिदमात JIT के हवाले कर दी हैं। SECP ने 4 मेंबर्स की टीम का इंतखाब किया है। SECP की टीम में हम्माद जावेद, खुर्रम हसन, अनवार हाशमी और हारून अब्दुल्ला शामिल हैं। नैब की टीम की सरबराही खावर इलियास कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FIA ने भी टीमें भेज दी हैं। एक और अहम खबर आपको दें, इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इमरान खान के वकील ने 35 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा कराया। तहरीरी जवाब में इमरान खान का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल बयान हलफी भी शामिल है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जैदी से। कमर, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया आज सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक जमा करा दिया है। इमरान खान ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बयान हल्फी जमा कराया है जिसमें कहा गया है कि जमाइमा को रकम जो है निजी बैंक के अकाउंट्स के जरिए दी गई और बनी गाला की जो अराजी खरीदी गई है वो जमाइमा ने खरीदी है। इमरान खान ने अपने बयान हल्फी में लिखा है, जहां तक मुझे याद पड़ता है सिटी बैंक को हदायत जमाइमा खान ने दी थी और जमाइमा खान की हदायत पर रकम भेजी गई अमरीकी बैंक से राशिद खान के अकाउंट पर। राशिद खान का बताया गया है कि राशिद खान इमरान खान के करीबी दोस्त हैं जिनके जरिए बनी गाला की अराजी का जो मुंतकिल रकम की मुंतकली थी, क्योंकि वो जमाइमा खान ने खरीदी थी तो राशिद खान को इमरान खान ने अपना जरिया बनाते हुए जमाइमा तक मनी ट्रांसफर की है। 5,62,000 पाउंड में बैंक के जरिए जमाइमा को मुंतकिल किए गए हैं। रकम मुंतकली के हवाले से मुआहदे की कॉपी मौजूद है और ये मुआहदे के तहत की गई है। फ्लैट की रकम पाकिस्तान लाई गई 1,30,000 पाउंड बच्चों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल किए गए। इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अपडेट कर रहे थे कमर जैदी, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में टारगेट किलर्स का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और पकड़े गए दहशतगर्दों का एतराफी बयान इस वक्त दिखाया जा रहा है। इस खुदकुश हमले में हमने अपने मकसद को हासिल किया जिसके नतीजे में 70 से ज्यादा इस खुदकुश हमले के अलावा तुमने किन किन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया? मैंने 2 दिसंबर 2014 को अपने साथियों के साथ मिलकर हिमानी कोसा पर बंद किया जिस करारदाद में पीए सरदार मोहम्मद परेज और अब्दुल रहीम गिरफ्तार हुए, लेकिन हम अपने इस हदफ को पूरा करने में
मिलकर FC एहलकारों पर बेनजीर पुल के नीचे बम हमला किया। मैं और मेरे साथियों ने 11 मई 2016 को डॉक्टर शिराज को इसके क्लिनिक और मुकामी जगह पेशाब बाईपास को चालू कर दिया। मैं और मेरे साथियों ने 19 जून 2016 को वारवंडी कोटा में एक मस्जिद में बैठे पुलिस हवलदार अमीरुल्लाह को अफसाई से बेहयात किया। मैंने 14 अक्टूबर 2016 को अपने साथियों के साथ मिलकर FC एहलकारों पर सफदर रोड कोटा पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 FC एहलकार हलाक हो गए। मैंने 19 नवंबर 2016 को व्हाइट रोड कोटा के मुकाम पर ड्यूटी पर मौजूद 3 FC एहलकार और एक जैकेट पुलिस एहलकार को अपने साथियों की मदद से हलाक किया। मैंने 16 जनवरी 2017 को पुलिस कांस्टेबल शहजाद को व्हाइट रोड कोटा और हेड कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन को गुलशन चौक कोटा में हलाक किया। मैं और मेरे साथियों ने 7 मई 2017 को एक खुशियों के मालिक गिरबख्श को बशीर चौक में कत्ल किया, जो कि मुखबर था। तुम्हारे ग्रुप ने मजीद कौन कौन सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं? बलूचिस्तान में टारगेट किलर्स का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। इनमें से एक दहशतगर्द एतराफी बयान दे रहा है और वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको अहम खबर देंगे। एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने मारूफ आर्टिस्ट और मुजस्समा साज गुलजी कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। इस्माइल गुलजी कत्ल केस का फैसला सुनाया गया है और अदालत ने 10 साल बाद मुकदमे का फैसला सुनाया है। याद रहे 10 साल बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया है। अदालत ने 2 मुल्जिमान को 3 बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। मुल्जिमान ने 2007 में डकैती के दौरान गुलजी, उनकी बेगम और नौकरानी को कत्ल किया था। एक और अहम खबर आपको दें, पेशावर से कराची जाने वाली PIA की परवाज की मुल्तान में हंगामी लैंडिंग हुई है और जरा ये बताते हैं कि कॉकपिट में धुआं भरने की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। बताया जा रहा है कि फ़नी खराबी को चेक किया जा रहा है। पेशावर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ को मुल्तान में उतार लिया गया। पेशावर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ की मुल्तान में हंगामी लैंडिंग की गई है। क्या मामला है ये जानेंगे परवाज़ के एक मुसाफिर और खैबर पख्तूनख्वा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद अफजल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अफजल साहब, कहिएगा जहाज़ की हंगामी लैंडिंग की क्या वजूहात हैं, क्या बताया गया आपको? असल में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। तो जब पेशावर से जहाज चला, पेशावर से वो 1 घंटा लेट था, 1 बजे चला और तकरीबन जिस वक्त तो सर्विस कर रहे थे चाय वगैरह की, उस वक्त हंगामी सूरत हाल नजर आई और बताया कुछ भी नहीं गया। लेकिन फिर 1:45 बजे जहाज को हंगामी तौर पे मुल्तान एयरपोर्ट पे उतारा गया तो मुसाफिरों को फौरी तौर पे जहाज खाली करवा कर ट्रांजिट लाउंज पे भिजाया गया और 1.5 घंटा गुजरने के बावजूद अफजल साहब, आप सफर कर रहे थे, इसमें ये जानना चाहेंगे तमाम अमला जो कॉकपिट अमला था और तमाम मुसाफिर महफूज रहे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसी किस्म की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल हंगामी लैंडिंग करके अभी मुसाफिरों को लाउंज में उठाया हुआ और जहाज की चेकिंग हो रही है और जहाज को ठीक करके मुसाफिरों को फिर ले जाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अफजल, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। कराची कोरंगी से आपको खबर दें, जहां मुबैना पुलिस एहलकार ने रकम हथियाने के लिए शहरी पर तशद्दुद किया। शहरी शकील अहमद को नासिर कॉलोनी में मेन रोड पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद के दौरान मुबैना पुलिस एहलकार के काटने से शहरी शकील जख्मी भी हुआ। कोरंगी नासिर जंप पर रात 12:30 बजे दोस्त के साथ शरबत पी रहा था। ये गुफ्तगू की है जख्मी शहरी शकील ने। उसने बताया कि इसी दौरान मुबैना पुलिस एहलकार वहां आया और दोस्त से पैसे छीनने की कोशिश की। उसने मुदाखलत की तो मुबैना पुलिस एहलकार ने मारना शुरू कर दिया। जख्मी शकील के बयान के मुताबिक मुबैना पुलिस एहलकार का नाम आसिफ तनौली बताया गया है, जो उसे पीटते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल थाने ले गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर ने में ज्वाइन किया है। अफजल, कहिएगा ये कंफर्म हुआ है कि ये पुलिस एहलकार ही है और क्या इससे पहले भी ऐसा कर चुका है ये?
जो थाने के लोगों ने बताया कि इसकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं अक्सर के इस तरह की जो वारदातें करता है, और जो बात की पुलिस एहलकारी है तो इसने खुद अपना नाम जो था वो आसिफ तनोली बता रहा था थाने में, और बड़ी गुंडागर्दी के साथ यानी जो ड्यूटी अफसर की टेबल है उसके ऊपर मुक्के मार मार कर अपना तारफ करवा रहा था कि मैं अमानुल्लाह मरवत जो SHO शाह लतीफ टाउन है उनका मैं गनमैन हूँ। फिर मैंने जब इनके SHO अमानुल्लाह मरवत से बात की, इन्होंने कहा कि वो मेरा उससे अभी कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जब इब्राहिम हैदरी थाने में SHO हुआ करता था उस वक्त ये इनका गनमैन था। लेकिन ये तो तय है कि ये पुलिस एहलकार है और इस तरह की अक्सर कार्रवाइयों में यहाँ पर ये मुलव्वस है। जी, और मामले की मजीद इंक्वायरी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया।